Online, everybody can hear my voice and see the screen, right? ક્યાં છે પેલા અહીંયા વાળો બધી પબ્લિક આજે ઓછી છે આ સાઈડ. અલા આજે નથી ગાંધી જયંતિ હવે એ લાઈક પ્રીવિયસ સન્ડે હતી યાર. ના ના યાર મજા આવે હોવા જોઈએ એક્ઝામ બધી ગઈ તમારી પાછી આવે मैं तो ओरिजिनल बोर्ड भी नहीं देता था, प्री बोर्ड तो छोड़ो. तो मैं ऐसे मैं गांधी जी के बारे में पढ़ा ऑन 2 अक्टूबर. So if I ask you any questions, yeah, I celebrated both. Yeah. Huh? Because I think मतलब throughout the year this would be my second post on my social media. That is it. I never post. लेकिन ऐसे कुछ significant होता है then and then only I post. So I posted about both of them. So within 2 hours I got 6 messages criticizing me why I wish Gandhi ji. And one of my friend wrote, what did he do that we are saying. मैं बोला अभी इसको मैं क्या बोलूँ? What did he do? Question mark. ठीक है? Okay, so the question was, name the books that were written by him. My experimental truth. Very good. उसके अलावा नहीं पता. ये पता था मुझे इसके लिए. Hind Swaraj. Young India was his journal. That's newspaper that he used to publish. Hind Swaraj. Okay, very nice book. Hind Swaraj. And my experiments with truth. Okay, good. You know, in Britain, Gandhi was the first person of non-white race whose postage was released by the British government. Okay, and recently we learned that गांधी जी का स्टैचू कहाँ पे एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया था. एक मिनट पैराग्वे. Yeah, very good guys. We did this in class. Okay, he was on a 3-country trip to South America. Okay, so we covered this news at that time. बस स्टैचू. Yeah. Lal Bahadur Shastri is associated with which slogan? जय जवान. जय जवान जय किसान. गुड. ओके, ठीक है. विच अग्रीमेंट की साइन? ताशकंद एग्रीमेंट. ठीक है, पिक्चर भी बन गए, देख लेना. हाँ, बाद में देखना, मतलब ठीक है, एग्जाम देने के बाद देखना. ठीक है. You guys learned about the chairman of Wipro, Rashad Premji. He fired number of his employees because for a issue called moonlighting. Okay, so that is our first news. You should be aware with some kind of terminology which are very much in news. Now moonlighting
is like working for IQ Ideas and working for other place also in the same domain. Suppose you are a software engineer, you are working with Microsoft. So Microsoft will expect you not to work at Apple or Google. But when you are doing the same domain job at any other place, it is called moonlighting. Okay. पहले ये issue नहीं था. Why it is on such a rise? Because of work from home culture. Okay. Why it is called as moonlighting? Because you will work extra after your normal working hours. So that will be during the night. So it is called moonlighting. Okay. So there is an ethical issue. The employee says no, it is not ethically wrong or whatever. But the company owners say no, it's wrong if you are actually doing in the same domain. What the Delhi High Court says that yes, you can fire your employee if you found him doing moonlighting. ठीक है? समझ गए? So that was the first news. The issue of moonlighting. Just write the definition, what you understand in your own words. Okay? Because they have asked what is a GAFA task. ठीक है? GAFA was Google, Apple, Facebook taxes. What is equalization taxes? ठीक है? For those examinations, who wants to go for liberal studies and stuff like that. ठीक है? So write it down in your own words, which gives you the whole picture. मेरे को 9 से 5 काम करना पसंद नहीं है. लोग मून लाइट શું નોઇઝ મેકિંગ એલિમેન્ટ્સ ક્લાસમાંથી ગાયબ છે કે તમે લોકો કેમ આટલા શાંતિથી બેસ્યા? મેં કંઈ ગુનો કર્યો છે કે શું? યુ ગાઈઝ આર સો ક્વાઇટ ટુડે. सर आपको कुछ होना चाहिए आप हमेशा बोलते हो ऑनलाइन હા હું છું જ પણ આજે આઈ એમ શોક ઓલ્સો યાર કે કેમ આટલો બધો ઓછો છે અવાજ. Anybody online doubt in this? સર મજામાં જ હોય. કેમ છો સર? સર ઇઝ ઓલવેઝ મજામાં. ચાલુ કરું બંધ કરું? લો પાડતા નહીં, બાકી જેને પાસિંગ ધ પાસર રમવું હોય રમજો. બરાબર? ओके गाइस, लेट्स गो इट नाउ. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक. यार देखो, Majestic Hindu Temple opens in Dubai. Okay, remember there was already one temple which was the first one opened, I think, a year back by Prime Minister Modi during his visit to UAE. So when you are reading this news, you should also go back and read about that article also. Okay, so a new temple has been opened in Dubai. It's a Hindu temple inaugurated at Jabal Ali village in Dubai. ठीक है, इसे क्या कहा जा रहा है? Worship village of UAE. What does it signifies? Peace, harmony, tolerance. ठीक है. Next news is important. That who was the two dignitaries who opened this? It was Minister of Tolerance and Coexistence on the part of UAE, Sheikh Nayan bin Mubarak Al Nayan. ठीक है, 2 बार नाया लिख देना और एक मुबारक है. ठीक है, बीच में. हाँ, and its ambassador Sujay Sudhir. Okay. Worship village of UAE has 9 religious shrines, including 7 churches, the Guru Nanak Darbar Singh Gurudwara, and the new Hindu house of worship. ठीक है, so that's like its name as worship village because they have n number of mosques there. Dubai, you go everywhere. Dubai, there is mosque, just like ours. Every crossroad mandir.
So now, along with your Ferrari world and everything, you should add this also to your go-to list in Dubai. जब भी जाओ तब, ठीक है? UAE is a group of 7 Emiratis. Okay, always remember this. Okay, Emiratis are basically can be seen as states who came together to form a federation, UAE. Okay, United Arab Emirates. Please do visit that news, the temple that was inaugurated by Prime Minister Modi. Okay, that is also equally important. Wow. This is when I tell you, never sit anything which is recently inaugurated. Vande Mataram Express, Vande Bharat Express. Okay, I told you. Remember, never sit in macro. Yeah, 4 buffaloes. Then the other day it was cows. Yeah. So macro ने भी 3-4 મહિના ચાલવા દો. Then you should go and sit. ત્યાં થોડી બફેટ આવે. ત્યાં બીજું બધું આવશે. આ બંધ પડી ગયું પછી ચાલુ પડશે રસ્તા ટ્રેક પર. તો પછી once we will do that session, don't worry. Okay. Okay guys, everybody. हाँ ना? तो जल्दी लगी लो. Gandhiji's arrival to India is celebrated as which day? From South Africa? 1915, 9th January. मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए पूछ रहा हूँ. So it is nothing new for you. I think you should know. भाई ऑनलाइन गूगल किए बिना. Yes. प्रवासी भारतीय दिवस गाइस. ठीक है? 9th January 1915. Pravasi Bharatiya Divas. We celebrate those Indian origin people, not NRI to be precise, NRI also, but more or Indian origin people who has contributed to other countries but are of Indian origin. So government of India felicitate them on this day. 9th January 1915 को आए थे वापस. ठीक है? Okay. Let's go. Okay, learn about AUKUS first. See, a few months back, United Kingdom and USA decided to form an alliance with Australia. In this deal, मैं तुम लोग लिख रहे हो तो तुमको मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे पता चलेगा? सुन लो, ठीक है? So UK, USA made a deal with Australia that we will provide Australia 8 nuclear submarines. Prime reason, China in the Indo-Pacific region. So that there is someone from the Western Bloc who can directly challenge China in Indo-Pacific. Who was partnered? Australia. Okay. So seeing at this pact, China lost it. They went to IAEA, International Atomic Energy Agency, headquartered in Vienna. And they drafted a resolution there that this pact, AUKUS, is in violation of this country's obligation under NPT. NPT के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया ऑलरेडी. ओके, कि ये जो AUKUS बनाया है वो क्या करता है? NPT को वायलेट करता है.
कैसे करता है? ऑन अ ब्रॉडर टर्म्स वी कैन से that basically you are transferring high grade nuclear technology, that is nuclear submarines, to Australia. ठीक है, but China got no support on the resolution, so they withdrew it by themselves. अब लिखो, ऐसे ही जाओगे बिना पढ़े रट्टा मारे तो यूके की जगह फ्रांस को लिख दोगे. ठीक है, कौन था ऑकस में? यस, सो फ्रांस वाज द वन विच गॉट एंग्री. यार ये गलत हो गया. क्यों? देखो, सब चीज को, हर एक चीज के पीछे एक ही चीज होता है, पैसा. बिकॉज फ्रांस हैड अ डील विद ऑस्ट्रेलिया दैट वी विल गिव यू डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, बट नाउ ऑस्ट्रेलिया सेज दैट नो, वी विल हैव एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन्स. ओके, सो फ्रांस को थोड़ा गुस्सा आ गया. ठीक है. Yes, NPT, India has not signed, Iran has not signed, Pakistan has not signed. Okay. Sir, Israel भी नहीं. Israel, yeah, Israel. North Korea. North Korea, yes. NPT की रिव्यू मीटिंग हुई थी, which is held every 5 years. वो हमने पढ़ लिया है. ठीक है. North Korea was the smarter one. That and Iran, they joined it and then they withdrew it. बोले अभी हमको हो गया, हमारा टेक्नोलॉजी लेके थे, withdrew it. કેમ બેટા? હું કહું તાર તું વાત કરતો તો એટલે ના સર, સાંભળ્યું તમે કીધું ત્યારે ફેક મૂકી. સારું 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 સારું. હું એમને થોડી કહું છું, તમે પહેલા મને સાંભળો, હું તમને ટાઈમ આપું છું લખવામાં. તમને લખવાની પછી વાતો કરવાની, બસ લખીને. Anyone interested for further studies, they should also look at a group called Five Eyes countries. Okay, especially collective. बाकी छोड़ देना. ठीक है. Five Eyes group, Five Eye countries. ठीक है. It's a high level intelligence group between USA, UK, Canada, New Zealand, Australia. So, the Commonwealth वाले सब. ना. Yeah, not Commonwealth, not the entire Commonwealth, only these 5 nations. तो जैसे जहाँ पे ब्रिटिश मोनार्क है, वो वाले कंट्रीज. Yes, you can say yes. But then what about US? So not entirely, but it's a group of those countries which share the same Western Western values. Yeah, Western bloc basically. Yeah, there are still blocks here. Okay, Australia, Canada. There is still West and East. मानो ना मानो, देख लो अब. इंडिया दोनों बाजू. India is balancing act, always balancing act, इंडिया ना. always balancing, always balancing. Atal Bihari Vajpayee's words resonates me in my ear. You can make your friends, but you cannot change your neighbors. As simple as that. Nothing doing. That's the reality for India. जो भी करना है दोस्त बना लो. बाजू में आजू बाजू कौन है पता है ना. That's it. You have to cultivate good relations. Okay, guys. Any doubt in this? चलो आगे. Just a second, sir. जल्दी. Remember this, Lal Bahadur Shastri was the first person, ठीक है, भारत रत्न मिला था पोस्टमसली. ठीक है, मरने के बाद भारत रत्न मिलने वाले पहले कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी. ठीक है. ये किसने? प्रेसिडेंट देता है ब्रो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हाँ, मैं किसके चाहिए? सर, प्रेसिडेंट का नाम का है. हाँ तो वो तो नाम का ही है ना. ऑफ कोर्स क्वीन भी नाम की है, किंग भी नाम का ही है. ठीक है. न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. सीएम भी नाम का है. नो, सीएम इज डी फैक्टो रूलर. दिल्ली सीएम. हाँ, दिल्ली सीएम इज नाम का, वो वही नाम का. हाँ. गुजरात सीएम भी नाम का है. नहीं, लाइक
On paper, yes. हाँ, On paper, no. हाँ. In reality, yes. Okay. ये Yeah. पूरा कुछ बोल लेगा. Yeah. मतलब वो साहब कर लो. Okay, let's go ahead, guys. देखो, annexation of 4 Ukrainian regions by Russia, very important. देखो, the East Ukraine, which shares land border with Russia, all those regions have been, at least in the eyes and law of Vladimir Putin, has been annexed and they are now part of the Russian Federation. Okay, which region are those? Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhia. ठीक है. Now Zaporizhia is the nuclear power plant. It also has a nuclear power plant which was constantly bombarded by Russians. ठीक है. लिख लो. When Putin did this, so हमारे जो बहुत अच्छे नेता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला मतलब उन्होंने वीडियो कॉल करके एक एप्लीकेशन दे दिया कि नाटो ज्वाइन करना है, नाटो ज्वाइन करना है. ठीक है. मतलब ही इज एक्चुअली थिंकिंग दैट वेस्ट विल गो एट वॉर विद रशिया बिकॉज ऑफ यूक्रेन. इतना दिमाग मेरा चलता है सर, वेस्ट कभी नहीं करेगा. पता नहीं इसको क्या पता, इसका क्या लॉजिक है. कमी दे रहा है. अगर सर पे जोकर को बिठा दिया तो यही होगा. मेरा आर्ग्यूमेंट आई नेवर. पागल है ये इंसान, क्या इसको क्या तकलीफ है. यू आर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे. ये मेरे सेम लॉजिक बोला वो वाला है यार. बाजू में देख यार, वो इतना और ये जेलेंस्की के नाम पे तो आपके जज्बातों के साथ खेल लिया था क्लैर्क ने, पता है ना. नाम बदला था. नाम बदल दिया था. तेजा मैं हूँ, मार किधर है वाला केस हो गया था. ठीक है. तो वेरी आइडेंटिकल नेम्स वेर गिवन टुगेदर. ठीक है. व्लादिमीर वोल्डीमीर. हाँ, मार किधर है. वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की. देखो, do this one thing. See the region around Ukraine. Time and again I have said, मैंने पुराने क्लासेस देखोगे आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा. You should see the Sea of Azov, the Crimean Peninsula and the Black Sea. ठीक है. You should know that Azov, Strait of Azov, the Sea of Azov is connected to Black Sea via which strait? Strait समझते हो ना? A narrow water body which connects two bigger bodies. Okay. In the same way, from Black Sea towards Sea of Marmara, which is located in Turkey. अगर अच्छा हाँ, तो वो कौन सा स्ट्रेट है वो पता होना चाहिए. सी ऑफ मार्मरा से लेके नीचे आगे एजेंसी कौन सा कनेक्ट करता है. दिस होल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये रशिया जितनी भी अभी बवाल कर रहा है वो इन सभी चीजों के लिए ही कर रहा है, बिकॉज दैट्स देयर ओनली वार्म वाटर पॉट फॉर द नेवल यूजेज. ठीक है. तो ये देख लेना. मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, देख लेना. पुराने लेक्चर्स देखोगे तो उसमें तो मैं मैप डाल के पढ़ाया था, तो उसमें आपको क्लियर कट दिख जाए. यस वंश, यू आर राइट, द नेम ऑफ द स्ट्रेट इज करेक्ट. ठीक है. चलो, क्रीमियन पेनिनसुला कब एनेक्स किया था? 2014. ठीक है. क्रीमियन पेनिनसुला. चलो, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी ओपन एट NIT श्रीनगर. देखो गाइस, एनीथिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट डन इन इंडिया पढ़ लेना. दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है. फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी. ग्रीन टेक्नोलॉजी मीन्स एनी टेक्नोलॉजी विच इज नॉट पॉल्यूटिंग in nature, which is very clean. Okay.
तो उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया है, वो भी श्रीनगर में बनाया है, तो मजा मजा आएगी, ठीक है। गुड प्लेस, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन। The whole project is supported and directly funded by Government of India through Department of Science and Technology, ठीक है, लिख लो। Modela India's first solar park village. અરે હા, એકચ્યુઅલી હું અત્યારે જઈને આવ્યો ને ત્યારે they were working on a big scale there. મજા આવશે મોદી inaugurate કરે. યા હું થોડા ટાઈમ પહેલા જ જઈને આવ્યો, I think a month ago. Very nice. राइट टू सीक्रेसी कौन सा राइट है? फंडामेंटल, Right to लीगल, प्राइवेसी नहीं, ध्यान से सुनो, सीक्रेसी, लीगल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, फंडामेंटल राइट। चलो, Legal right, fundamental right. बाय स्टैट्यूटरी राइट वाले तो मेरे को कोई लॉ बता दो जिसने आपको वो राइट दिया है। सर आप लोग अमेरिका में इन्वोकिंग द फिफ्थ वॉल ना 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 ना, ये तो अलग है, ये तो आर्टिकल 20, दैट इज डिफरेंट। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हाँ, दैट इज डिफरेंट। राइट टू सीक्रेसी कौन सा है? लिखो, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट या पहले right to secrecy is just like right to privacy. Privacy is what? सी दे तो पूछ Okay, guys, it's a fundamental right. ठीक है? ઈસો ચર્ચા કે કોઈ થયું બધું થયું જોઈએ ને યાર, એટલે તો ભણાવું જોઈએ સર મજાક નહીં એ તો ને યાર, એવું જજબાતી નહીં થઈ જવાનું, થોડું તો પછી આવું વિચારીશું તો રાતના ઊંઘ કઈ રીતના આવશે, બરાબર? सर हर साल फेसबुक और व्हाट्सएप का डेटा लीक हो जाता है એ બધું ચાલ્યા કરે, આપણે ચિંતા નહીં કરવાની, બધું આજકાલ એમ पीपल themselves want to leak their details। देख लो आप लोगों के इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, जिसकी प्रोफाइल देख रही है उसमें why to blame फेसबुक? अगर नाम के लॉस बना के क्या टाइम पास कर रहे हो आप ऐसा लगना चाहिए ना, कुछ काम चल रहा है, ऐसा तो लगना चाहिए ना यार। पढ़ता मैं भी नहीं था, लेकिन बुक खोल के बैठता था मैं पापा के सामने। ठीक है, नो 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 ऋषित, इन जनरल। चलो एवरीबॉडी, लिख लिया ये? ठीक, चलो देखो यार, આ તો કરી નથી તો देखो ध्यान से सुन लो वरना चकले ही उड़ेंगे। ध्यान से सुन लो, गरबे करोगे आप लोग। देखो यार, एमपीटी मैंने 2 महीने पहले इसी क्लास में पढ़ाया था इन डिटेल में, ठीक है? तो क्या लफड़ा हो गया कि किसी को कोर्ट में जाना पड़ा? द प्रॉब्लम वाज अ सेक्शन इन एमपीटी व्हिच इज कॉल्ड 3B। नाउ रूल 3B सेज अंडर एमपीटी that only certain section of women which have some special attributes they can move for an abortion after 20 weeks। okay, up to 24 allowed है, ये पढ़ाया था, ठीक है? but after 20 only certain, in that categories the consensual based relationship and pregnancy with it was not included। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया? then how to get an abortion if you are a single unmarried woman? So this case went to the Supreme Court। पहले दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट ने ना बोल दिया कि we cannot allow you to get an abortion। तो the girl went to the Supreme Court। तो Supreme Court ने बोले that this rule is, this has no value, इसका कुछ मजा नहीं है, ये constitutionally sound नहीं है, because कोई criteria नहीं है the way that we should treat married and unmarried women on a different scale or on a different footing, ठीक है? So Supreme Court said that if we are allowing married women, then even unmarried women should be allowed to get an abortion after 20 weeks। 20 weeks तक करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but after 20 weeks for unmarried women under MPT before this judgment it was not allowed। but now after this judgment even unmarried women can have safe abortion after 20 weeks, okay, but less than 24। गिसो अमेरिका बोले हमें पॉपुलेशन बढ़ाना है, इंडिया इज लाइक हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। सी द जजमेंट्स ऑफ जुडिशरी।
सर रशिया में अवार्ड डिक्लेयर किया है 10 से ज्यादा But that's a very old system launched by Lenin, I think. नहीं सर स्टालिन था Stalin, yes, Stalin. नहीं अभी कुछ अनाउंसमेंट किया Joseph Stalin, yes. हाँ, Joseph Stalin, हाँ. सर 10 बच्चे पैदा करने वाले को ऑर्डर ऑफ रशिया में ऐसा कुछ हाँ, सुपर मदर, सुपर वुमन, ऐसा कुछ और. या ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड मेरे को तो ये कभी पता नहीं चला. पता नहीं, मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट रहा है पहले से इसके लिए. थोड़े बेहतर सर मतलब यार हाउ कैन ये लॉज, मतलब यार आपको बहुत सलाह मशवरे के बाद बनाने चाहिए, स्पेशली इफ यू आर नॉट मेकिंग योर ओन फॉर योर ओन सेल्फ. ठीक है, तो पार्लियामेंट में बैठे 40 लड़कियां, सो लॉज आर टोटली मेड बाय अ मेल डोमिनेंट पर्सपेक्टिव. मेरे को पता नहीं चलता, इसमें मजा नहीं है, इट्स रिडिकुलस. ठीक है, अगर ऐसा ही सही था तो फिर इवन ब्रिटिश वुड हैव सेड कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, हम बना ही तो रहे, 5 को बिठाया तो है. बट वी सेड वी वांट मोर रिप्रेजेंटेशन. उसके लिए तो इतना बवाल था अपना. Oh yes, वंश, you are right. भाई समझ गए व्हाट वाज द ट्रबल 20 और 24, मैरिड और अनमैरिड, ये दो में थोड़ा प्रॉब्लम था. ठीक है, सो ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना. अभी आप लोगों का होमवर्क ये है दैट यू हैव टू टेल मी द केस, यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द केस अंडर विच दिस जजमेंट इज गिवन. जैसे हम पढ़ते हैं ना पुट्टुस्वामी, पुट्टुस्वामी क्या है, केस का नाम है, उसने क्या दिया, बोले राइट टू प्राइवेसी. इन द सेम वे इसका नाम ढूंढ के लाना है. ठीक है, लिख लो ये. હોમવર્ક નો મતલબ શું હોય કે તમે ઘરે જઈને કરશો. બરાબર. All of this is a part of which fundamental right? राइट टू प्राइवेसी 1921. मतलब 19 भी और 21 भी. ठीक है, 1921. सारो वंश, good. But don't go too deep in all these things, okay? Be smart, be selective what you have to read. मला भारतची बेसिस बदला करतो हेच आज आवश्यक चंद्र हां चंद्र तुझा होतं पण नाही उदय भाई इसलिए या 3 महीने के लिए क्या बिठाया मेरे को, इससे अच्छा चंदू को ही बिठा देते. हाँ, 50 देगा 49, 50, 50, yeah. अरे यार ऋषित मैं બધું કહી દીધું યાર. આર્ટિકલ 21 and it associated with Puttuswamy, right to privacy. Right to privacy. Okay. Okay guys, हो गया. Everybody, चलो. अरे यार देखो, ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ग्लैक्ट वाले एक समझ ही लेना. ठीक है, लास्ट टाइम रहा था ये आसपा, काफी चर्चे में रहा था. आसपा के ऊपर आपको क्वेश्चन आ गया. ठीक है, इस बार क्या है, वो पीएमएलए लॉ है, फिर ईडी है, एनआईए है और यूएपीए है. ठीक है, इनके अलावा ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती. सो ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, ये थोड़े फैक्चुअल न्यूज है, पहले इतना लिख लो. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? देखो, MHA, Ministry of Home Affairs, they have banned, ये कौन था, Popular Front of India, okay, हाँ, for 5 years. So they have authority under which power? बोले UAPA, Unlawful Activities Prevention Act 1967. ठीक है, but not only that, its associated organizations are also banned. तो कौन सी बैन कर दी गई है वो सारी लिख लो, पता चलेगा कौन सा बैन किया है, नहीं किया है. And one important thing is remember is SDPI, Social Democratic
पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज इट्स पॉलिटिकल विंग, उनको बैन नहीं किया है, ठीक है, हाँ उनको बैन नहीं किया है. All the other associations have been banned, but the political organization of PFI that has not been banned. ये सब लिखो, ये हॉट टॉपिक है और ये सारी एजेंसीज हॉट फेवरेट है, ठीक है, गवर्नमेंट की तो आपकी भी होनी चाहिए, ठीक है. फॉर्मेट तो चाहिए. फॉर्मेट पे इंग्लिश 70 रीजनिंग અને અને 50 इंग्लिश 70 इंग्लिश की है रीजनिंग में બધું આવે. मैथ्स में मैथ्स भी आई सके, नहीं भी आई का सके. बात. जीके भी આવે, फिलोसफी भी આવે, एनालिटिकल भी આવે. UAPA was created in 1967 because there was some very important movement in India. Any idea? So to tackle that, this law was enacted. 1967 में बनाया गया है ये लॉ. तो उस टाइम पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंडिया में हो रही थी. एनी आइडिया? गुजरात महाराष्ट्र सो स्पेसिफिकली उसको टैकल करने के लिए यस, नक्सलबारी मूवमेंट, लेफ्ट, ओके, लेफ्ट राइट तो कुछ होता नहीं है एटलीस्ट मेरे लिए, लेकिन नक्सलबारी मूवमेंट या, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, ये लेफ्ट राइट क्या है, ठीक है. नहीं भाई, मंडल कमीशन मच लेटर यार, 1991. ओके, दैट्स डिफरेंट. दिस न्यूज इज इम्पोर्टेंट, इसलिए आज यूएपीए भी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में और एनआईए भी पढ़ेंगे, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. चिदम्बरम भी कंफ्यूज होगा कि इसको मैंने बनाया ही क्यों, अगर नहीं बनाया होता अच्छा रहता. बच जाएगा. हाँ, चिदंबरम को बनावे ऑब्वियसली एज द मिनिस्टर भाई, रिमोट જ્યાં બી માર્કેટમાં ફરતું હોય. સ્ટેચ્યુટરી કે કોન્સ્ટિટ્યુશન કઈ નથી. નો, એનઆઈ ઇટ્સ a statutory backed body, yeah. There is a law, NI एक्ट ઓકે. law act. law એટલે act જ છે. તો સીબીઆઈ કઈ નથી. CBI is totally executive agency. Yeah. भाई जल्दी पेन चलाओ. અત્યારે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બી થઈ રહી છે. F1. चलो भाई, हो गया. हाँ हाँ हाँ, पूछो जो पूछो. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया. आयो जिग्नेश नाड़ी पे केस हुआ ना, जिग्नेश नाड़ी पे केस फंडिंग एसडीपीआई ने जब You criticize government, you are gone next. Okay.
एसडीपी इंडिया कोई भी ऐसी हरकत करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम में सोशल होता है, डेमोक्रेटिक होता है, रिपब्लिक होता है, पीपल्स होता है। हाँ आपको तो ये तो सब इट्स लाइक, अरे यार मतलब यार ये वर्ड्स का कुछ नहीं होता है, वो कुछ भी लगा दो आप। सर रिप्रेजेंटेशन का चाइना PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, बोलो। चलो हो गया भाई, લખો પછી એમ કહેશો કે સર પાછળ રાખો। हाँ चलो ओके। सेक्शन 10 ऑफ यूएपीए देखो कौन सा सेक्शन के अंडर बैन किया है वो भी याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 ऑफ द, अब भाई यहाँ સુધી અવાજ આવે છે, મેસેજ થી વાત કરો, એક કામ કરો, એ ચાલશે। सेक्शन 10 ऑफ द यूएपीए मेंबरशिप इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन इज इलीगल, मतलब सेक्शन 10 के अंदर आप क्या कर सकते हो, बैन कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम 2 साल के लिए कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। कौन करेगा बैन? सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेक्शन 7 क्या कहता है? यूएपीए ग्रांट्स द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ फंड बाय इलीगल ग्रुप, मतलब आपका पैसा जितना पड़ा है वो सब क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे, ठीक है। वो कौन सा एक्ट के सेक्शन के अंदर करेंगे? सेक्शन 7, ठीक है। सेक्शन 10 के अंदर डेफिनेशन दिया है कि क्या क्या करने पे आपको उठा लिया जा सकता है, ठीक है। continues to be a member of such association, participates in such association meeting, contributes to, receives, solicit any contribution, पैसा वैसा लाते हो, may be extended 2 years and shall be liable to fine। मतलब अगर आपने ऐसी बैन ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पैसा या कुछ एक्टिविटी में आपने किया काम, तो आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है, और मिनिमम कितने, मिनिमम कब तक जाओगे अंदर? 2 साल के लिए, ठीक है। लिखो सर सेक्शन किसी को death penalty एफसीआर को रिलेशन करो। कौन? सेक्शन 7 एंड एफसीआर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन ના FCRS છે ને આખું ફોરેન ફંડિંગ ઉપર છે, and that is dealt by this guys, ED, Enforcement Directorate, Ministry of Finance. भाई these are very cross dimensional crimes, ठीक है। इनको भी मतलब कहाँ से पैसा, बट एक बार NIA is like a, NIA को एकदम जोरदार बना दिया है। NIA को ऑफिसर बॉस है ओरिजिनल, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है anyway, it doesn't have to take permission from state government, from anybody, डायरेक्ट सीज कर सकता है, सर्च कर सकता है। दे हैव गिवन एक्सट्रीम पावर्स दिस गवर्नमेंट, क्योंकि देश खतरे में ऐसा हमको लगता है। 2014 के पहले तो नहीं लगता था, सीधी से और बाद में बढ़ गया ऐसा। मेरा सारा हैंडबैगिंग तैयार है यार, મને મજા नहीं तो बता, મને मन मारा बच्चा इतना है। પણ આ ફટાફટ બતાવો बहुत ठीक है, ધીરે ધીરે टीचर ने आपका पावर देता है। आसफा का लॉ एनेक्ट किया गया था 1997 नागालैंड में किया था। गुड। हाँ 87 58 57 58 yeah, that's right। Now हाँ, that was enacted हाँ, especially to control the Naga movement, हाँ okay। ये बैकग्राउंड होता है ऐसे लॉस का। NIA बिकॉज ऑफ ये कौन सा है 26/11, हाँ वही है। Don't take this section in light way, they will straight away ask you, ठीक है, in exams। लास्ट टाइम पढ़ाया था ASFA के बारे में, see the questions they have asked on the sections only, ठीक है।
ચલો ભાઈઓ બહેનો આગળ જઈએ. થયું બધાનું? ચલો. ये छोड़ो. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स is authorized to notify any place which is in the opinion used for the purpose of such unlawful organization under section 8. मतलब section 8 में क्या होगा? Your property where you there is a suspicion of any kind, यहाँ पे आपने कुछ गलत बलत प्लान किया है तो वो क्या हो जाएगा? सीज. ठीक है, लिखो. ऐसे लॉज मैंने 3 कंट्री में स्टडी किए हैं. 3 कंट्रीज, यूके, यूएसए एंड इंडिया. देख लेना आप ऐसे लॉज जिसे आप कह सकते हो ड्रैकोनियन लॉ बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. So my only problem is that why it is not used against any other section of people. ऐसा तो नहीं है ना? रशियन माफिया को भी डालो आप कभी, इटालियन माफिया को भी डालो आप कभी, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता. तो मेरा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है. इंडिया में भी मैंने सेम नोटिस किया है. कोई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी कुछ को छोड़ के, उनका नाम तो नहीं आता. सर ऐसे एक क्वेश्चन है, ऐसे कुछ सीरियस तो नहीं है, लेकिन यूएस के पास इतने पावर्स हैं तो अलकायदा मतलब कौन सी कंट्री से ऑपरेट करती है मुझे नहीं पता, लेकिन अलकायदा अमेरिका सीआईए ने खड़ा किया है, कहां से आएगा? यूएस देयर बैलेंसिंग एक्ट. गुड पीपल, गुड एज इन लाइक वेरी स्मार्ट पीपल. अभी पाकिस्तान को दे गेव F-16. वाह. हाँ एग्जैक्टली. हमने क्या कर लिया आपके साथ ऐसा? बट यू नो ऐसा नहीं है. दोस्त है मेरा. वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू. आप बोल रहे हो पाकिस्तान को इतना पैसा देंगे, 400 मिलियन 500 मिलियन. हाँ 400 ह्यूज अमाउंट. बोले F-16 को ऐसा. F-16 द एक्चुअली F-16 का यू नो व्हाट्स द सिनेरियो दैट द अमेरिकन्स गिव देम ओनली टू बी यूज. मतलब जब देते हैं तो कुछ अग्रीमेंट साइन करते हैं तो ओनली नीडेड टू बी यूज इन काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज. F-16 कहाँ पे यूज किया? इंडिया पे. क्लियर वायलेशन ऑफ द अग्रीमेंट, ट्रांसफर अग्रीमेंट. ओके चलो. बट दैट इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क. जल्दी लिखो भाई. क्लैक स्टूडेंट्स के लिए दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूएपीए और एनआईए और ईडी पीएमएलए. ईडी पीएमएलए ऑलरेडी काफी डिटेल में हो गए हैं. ठीक है, ये 2 कर लेना और अच्छे से. ओके गाइस चलो. बताइए. Some more factual information लिख लो. It was established in 2006 as a union of NDF and the Karnataka Forum of Dignity. लिख लो ये भी लिख लो. चेयरमैन कौन है? ओमा अब्दुल सलाम. एंड वाइस चेयरमैन कौन है? अब्दुल रहमान. ओके नहीं यार वंश याद नहीं. टीएफआई पे एलिगेशन किया कि ये लोग क्या पता है आईएसआईएस के लिए रिक्रूट करते हैं. होता होगा. नो आइडिया. नियो का मतलब पता है ना? मैट्रिक्स वाला. हाँ ये है ना? मैट्रिक्स में है ना कि ना रिव्यूज अपना नियो. ठीक है. अरे ऋषित લખ્યું તો છે દોસ્ત. આજે બીપીટી જ રીડ કરી છે મેં. અરે મેટ્રિક્સ है तो मस्ती કરું છું यार. ભણવામાં નહીં આવે આવું.
चलो भाई पतियू जल्दी है जल्दी जल्दी है। અડધા સ્ટુડન્ટ્સ તો મને બહાર મળતા હોય છે આફ્ટર ધ લેક્ચર. અરે સર ક્લાસમાં આવતા રહો મેની ટાઈમ્સ યુ નો મસ્ત દે મસ્ત બંક. ચલો લખો હું ડિક્ટેટ કરું છું એક જ વાર બોલીશ આરામથી લખજો. ઓનલાइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन द न्यू न्यूज़. पीपीटी नहीं है और एक करूंगा. देखो रिसेंटली इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 was held. ओके लिखो थीम क्या है? न्यू डिजिटल यूनिवर्स. दिस मीटिंग इज लार्जेस्ट इन एशिया. ठीक है. ऑर्गेनाइज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. एशियाज लार्जेस्ट इतना ही लिखना होता है, फिर मीटिंग आप लिखते हो तो आप गलत कर रहे हो. ठीक है. एशियाज लार्जेस्ट दिल्ली दिल्ली दिल्ली. So organize किसने किया? अच्छा अच्छा ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. मतलब यार आपका लिखने का स्किल 6-7 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स से भी. आप बोल लो मैं लिख लेता हूँ. चलो एक काम कर इतनी स्पीड रह गया. हाँ टेलीकम्युनिकेशन साइड सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. रियली मैं ना पीपीटी बनाऊं तो तकलीफ, खुद लेके आऊं तो तकलीफ, बोलूं तो तकलीफ, बाकी क्या रहा. तुम लोग आवाज करते हो ना वो मेरा कंप्लेन है फिर. सर आज का तब भी आपने कंप्लेंट. ठीक है. इट वॉज ऑर्गेनाइज इन दिल्ली. ठीक है. इंडियन मोबाइल कांग्रेस दिल्ली में ऑर्गेनाइज. थीम बोल दी आपको. किसने ऑर्गेनाइज किया देख अभी वो बात कर रहे हैं फिर अभी वो लिखना भूल जाएगा. ठीक है. तनेज को दोस्त અત્યારે લખી નાખ્યું પછી કોઈ રસ રહી જશે. बराबर. ओके क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ रहे हैं? बिकॉज इन दिस कांग्रेस ओनली हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ही लॉन्च 5G 5th जनरेशन सर्विसेज. ठीक है. Yes, total 13 cities of India will be having this 5G technology for a trial run. लिखो अहमदाबाद is one of them, so you should be happy. ठीक है. कितनी कंट्रीज सिटी कितनी सिटी में लॉन्च किया? 13 सिटीज में. ठीक है. मुकेश भाई ने बोला है कि दिसंबर तक पूरे इंडिया में हम पूरे इंडिया में हम कर देंगे 2023 तक. चिंता मत करो. मतलब आने वाले दिसंबर तक पूरे इंडिया में बाय दिसंबर 2023 वी विल लॉन्च 5G ऑल ओवर इंडिया. सो नया फोन ले लेना. 4G पे चलेगा नहीं. इट शुड बी 5G कंपैटिबल. हाँ अपग्रेडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव टू डू. हाँ तो अभी इसके थोड़े फायदे समझ लो. लिखने की जरूरत नहीं है. देखो इससे क्या है कि आप जितने भी न्यूज है ओरिजिनल या फेक वो ज्यादा तेजी से फैला सकते हो. दैट विल बी द फर्स्ट बेनिफिट. 4K 8K दैट मीन्स हाई डेफिनेशन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हो. तो जे भी वो गेम वेम वाले उनको मजे पड़ जाएंगे. ठीक है. बट ऑन रियल टाइम बेसिस the technologies that are used by industries in today's time, drone technology, okay, artificial intelligence, internet of things,
they can be very much efficiently run by 5G only. 4G में चलता है but it is not that accurate. These systems need actual real time data, logarithm, everything which can be provided by only 5G connection. Moreover, you can attach too many devices within a 5G network which cannot be done in 4G. लेटेंसी कहते हैं, लेटेंसी मतलब यहां से यहां डेटा भेजने के लिए कितना टाइम में लैग आता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी. दैट विल बी इन माइक्रो सेकंड्स इन द केस ऑफ 5G. ओके, यू कैन सेंड लार्ज डेटा इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, 4G इतना फास्ट चलता है, 5G का क्या मतलब है मेरे को पता नहीं चलता, लेकिन चलो ठीक है, 6GB लाना, 7GB लाना, ठीक है. So all of these things, robotics again dependent on, बट सैटेलाइट एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको थोड़ा एक डेटा दे देता हूँ कितना स्पीड है. ठीक है, हाँ, स्पीड विल बी एज हाई एज 20 Gbps, दैट इज गीगाबाइट्स पर सेकंड. મને તો ખબર બી નથી કેટલું આવે, આ બધું બકવાસ વસ્તુ છે. 20 Gbps, જ્યારે 4G માં રેકોર્ડેડ કેટલી છે 1 Gbps. સો યુ કેન સી ધ ઇન્ક્રીઝ, ધેટ્સ લાઈક 20-fold increase. ઓકે, 4G એટલે એક્ઝામમાં જે આવશે ને એ લખો બરાબર. Okay, understood. For every advanced technology in today's time 5G is required. ठीक है, समझ गए. Indian Mobile Congress is a very important association and every year it is organized in India. Important है, ठीक है. आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को वहां पे VR पहन के वो गाड़ी चलाते हुए भी देखा होगा. ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है या at least he is energetic than Joe Biden. That's what I like. ठीक है, energetic than Joe Biden. ठीक है, let's go. Okay guys, online students लिख लिया. Okay, चलो देखो भाई, जम्मू एंड कश्मीर ऑब्जर्व्स हॉलीडे ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा हरि सिंह. ठीक है, सी ही वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ये भाई ही थे कभी हाँ कभी ना वाले केस में. ठीक है, कि कहाँ जाएंगे, इधर जाएगा उधर जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा. ठीक है, तो उसमें उनका थोड़ा लफड़ा हो गया. ठीक है, बट अभी तक क्या था, देयर वाज नो व्हाटसोएवर, पता नहीं मेमोरी के लिए. ठीक है, तो मनोज सिन्हा, he is the lieutenant governor of Jammu and Kashmir. Under the direction of the central government, they have declared, because it's a union territory, that आज के बाद क्या होगा, हरी भाई का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में लिख लो. बोले हरी भाई बहुत अच्छा इंसान है, काफी अच्छा काम किया उन्होंने. ठीक है, तो वो सब सेम स्टोरी है. हाँ, ના ના ના, આપણને ખબર ના હોય યાર. આપણને શું છે, જે પોલિટિશિયન કે જે મોબાઈલમાં આવે, વોટ્સએપમાં આવે, આપણે એવું વાંચીએ ને, એ તો વેરી એવું ચાલતું મારી સાઈન કરે. ને તો પ્લસ ઇન્ડિયા ગુપ્તા ही रहता था. वो इज ओरिजिनल ओजी नरेंद्र मोदी. या ओजी, हां, ये ओजी, हां, ये तो ओरिजिनल ग्रैंडफादर, गॉडफादर. ठीक है, सर कब है इनकी बात? वो यार मैं लिखना भूल गया, टू बी ऑनेस्ट. हरी सिंह देख लेना. अक्टूबर में होगी. ना अक्टूबर नहीं, सितंबर में है. सितंबर मेरे 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 पर नाना कितना जन एक साथ गुड फेलो. इनका स्टोरी भी जोरदार है. लाइक हिज फोरफादर आफ्टर द पंजाब एम्पायर वाज डिफीटेड, so हरी सिंह, his forefather गुलाब सिंह is like one of the generals in Ranjit Singh army. So he's like ब्रिटिश के साथ अपने अलग धंधा करेंगे. बोले तेरे को इतना पैसा देता हूँ, मेरे को कश्मीर दे दे. So that's how the story of Dogra Rajputs coming into Kashmir. That is the story. ब्रिटिश ने बोला ठीक है, पैसा भेज, मैं तेरे को ये देता हूँ.
छोटा कोई समझ में नहीं। वाह Excellent. हमारे Excellent. पास तो फोन ही नहीं था। Excellent. बच ही गया। इनका बेटा अभी भी चालू जिंदा है मतलब हाँ चालू ऐसे बस He's working. He's working. मतलब है अभी जिंदा है अच्छी वजह से हाँ करण सिंह का नाम है उनका ठीक है हाँ बड़ी नहीं है थी ना। नहीं यहाँ पे है यहाँ पे इंडिया में क्या था? इंडिया में अच्छे भाई इंडिया में काफी कुछ हाँ मतलब जनसा वाला कांग्रेस पब्लिक को है अबे, मुझे हिमाचल मजा प्रदेश है। मजा करवाने आना भी सर उनका भी कुछ कांग्रेस के साथ हुआ था ना। चलता है। ठीक है रहने वाले ना से आप कोई पॉलिटिकल साइंस वाले हैं यहाँ पे तो आते आप पढ़ते हो ना पॉलिटिकल साइंस में इन पॉलिटिक्स देयर इज ऑलवेज इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट देयर आर नो फ्रेंड्स देयर आर नो एनिमीज ठीक है जर्जी नहीं दैट्स द रियलिस्ट विजडम ऑफ और थॉट which dominates the international politics चलो भाइयों आगे चलते हैं देखो मोहम्मद बिन सलमान अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर कहाँ का होगा MBS सऊदी अरेबिया सो द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया क्या नाम है उनका भी कुछ ऐसा सलमान बालोन ही है भाई ठीक है हाँ तो ही अपॉइंटेड मोहम्मद बिन सलमान एज द प्राइम मिनिस्टर अभी तक क्या था ही वॉज क्राउन प्रिंस अपनी भाषा में अभी तक वो युवराज थे लेकिन अब उनको क्या बना दिया कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ किसने बनाया किंग सलमान ने ठीक है he already had de facto powers in Saudi Arabia and now he is like on official with powers with titles okay and he is considered as a visionary leader वो तो है मैं खुद मानता हूँ because he is working towards the transformation of Saudi Arabian economy बोले ऑयल बहुत किया अभी इसके अलावा आगे कुछ बढ़ते हैं ठीक है so he has a vision 2030 for it ठीक है but rather he is considered as very controversial because of he is considered as one of the prime accused in the murder of Jamal Khashoggi. He is a Saudi Arabian national who was killed in Saudi Arabian embassy in Turkey. ठीक है? So that was the story. So some of them see him as a threat or whatever, but other people consider him as a good fellow. Okay. लिख लो. सर किस पॉपुलर नोन एज व्हाट MBS उसको छोड़ो भाई. लिखो तुम ये लिखो यहाँ पे जो है ना बोली. नए नए नाम रखो यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन कौन है यार ठीक है इधर भी सलमान कौन सा है कुछ खान बान लगाओ पठान लगाओ पता चले यार भी नहीं लगा हाँ ये चार्ल्स का पता तो चलता है चार्ल्स 3 मतलब पहले कोई 2 होंगे सारी ही वॉज डी फैक्टो बट ना उसको टाइटल पे दे दिया कि तू आके बैठ ही जा बस वो जो किंग होता है वो हमारे प्रेसिडेंट के साथ सोने के लिए आता है और इतना लोगों को क्या होता है पहले के जमाने से इनका क्या होता है पहले जमाने से ही बहुत तगड़ा रहता है 5 6 10 भाई बहन होते हैं तो सबको बनना है युवराज क्राउन प्रिंस ठीक है अभी इसका भाई है प्रिंस अब्दुल्ला बिन अजीज उसको एनर्जी मिनिस्टर बनाया है पहले MBS मतलब मोहम्मद बिन सलमान ही वाज अ डिफेंस मिनिस्टर लेकिन अब उसको डिफेंस से हटा के बोले तो प्राइम मिनिस्टर बन जा ठीक है उसने अपने चाचा को भी मार दिया था ना कितना ने मारा हाँ नहीं वो रीस कार्ल्टन में उसने हाउस अरेस्ट कर रखा पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स गदर ही नहीं हो भाई सर आपने द डिक्टेटर देखा वो पॉलिटिक्स नहीं है वो कॉमेडी है आई लाइक कॉमेडी ना भाई मेरे को बहुत ज्यादा सबसे कॉमेडी मूवी है हां सर डिक्टेटर हां डिक्टेटर जो ना भाई टाइम पास फनीस्ट मूवी फनीएस्ट मूवी है फनीस्ट मूवी है क्या पोर्ट्रे किया है मिडिल ईस्ट को मतलब बाय नो
but are we getting a son or a daughter? બધા ફોન વગર ચાલે બધાની વાત કરું તો ટેન્શન ના કોન્શિયસ કરે જનરલ I understand guys. Okay, થઈ ગયું જલ્દી અમારા ગામમાં શું હતું યાર ફોન એવા હતા કે કઈ થઈ નતું શકતું બહુ યાર યુ નો બધું નવું નવું બધું આવ્યું હતું એમ બધું નવું નવું આવ્યું હતું क्या था सो અને મેં મારા ફ્રેન્ડ્સને હું આ જ ક્લાસરૂમમાંથી ખેંચી ખેંચીને બહાર લઈ ગયો છું કે ચલો 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 લેટ્સ ગો સમવેર એલ્સ ચિલ બિલ ઠીક હે અહીંયા ઉપર કેટલા બધા ફોટો લગાવ્યા છે અહીંયા નથી એમાં ઘણા બધા મારા બધા ફ્રેન્ડ્સ જ છે બધા ઉપરના ક્લાસમાં હતું પહેલા ये नीचे क्या हो અત્યારે બાકી પહેલે ક્લાસીસ ઉપર થતા હતા એટલે કહું છું ચલો ભાઈ આગળ જઈએ નો 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 ओके देखो ये दीदी जोरदार है फर्स्ट फीमेल प्राइम हाँ तो दीदी अभी क्या है इटली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं दीदी traces his party roots from the party of Benito Mussolini ठीक है and she is not right she is far right ठीक है ऐसा है and she will be the first lady female prime minister of Italy ठीक है she will lead the government is called Brothers of Italy ठीक है it was a very small party then they went with a coalition with other two parties and they were a much bigger entity ठीक है उनके साथ कौन होंगे टीम में उनके साथ which also includes Matteo Salvini he admires Russian president Vladimir Putin ठीक है and Silvio Berlusconi ठीक है कितना मिल गया उनको वोट 43%. So now for the first time after Hungary we have Italy which has a very far right prime minister ठीक है तो यूरोपियन यूनियन को थोड़ा दुख हो गया है कि ये लोग इतने खतरनाक लोग अभी आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बन के ठीक है so there is a rise of right politics okay ऑल ओवर द वर्ल्ड all over yeah एक्सेप्ट फॉर यूएस यूएस में भी होगा होना चाहिए यार होना ही चाहिए आपने भूल जाओ हाँ क्या my only problem is what you know I judge people by saying yards ठीक है so if I think like this like okay I don't like anybody coming to my country so I am obviously in support of American people who would not like any immigrants in their country what's wrong in that I can't say कि मेरे को ले लो लेकिन मेरे कंट्री में ऐसा बोल के नहीं कोई मार वाला नहीं that is pure hypocrisy मेरा नहीं हो सकता सॉरी सर न्यूयॉर्क में 17,000 इमिग्रेंट्स आ गए मेरा एकदम स्ट्रेट है कि अगर ये गलत है तो ऐसा सेम ये भी गलत हो सकता है फिर मेरे को आइडेंटिटीज माय आइडेंटिटीज डजंट लाइक मी पर मोदी क्यों सोचता है हमारे लिए अच्छा है डोनाल्ड ट्रम्प का लाभ है हमको क्या है सर न्यूयॉर्क में 17,000 इमिग्रेंट्स भेज दिए टेक्सास वाले ने ब्रैग अबाउट में टेक्सास में रहो आई हैव स्टेड देयर फॉर 3.5 years so it's always immigrants until and unless you are staying in good cities or very big rural cities then it's fine लेकिन काम करने को घर पे there will be a Mexican guy that and a white fellow will never do any odd jobs in his life. He will have his burger, but he will not take any kind of other odd jobs. उसके लिए आपको निकालुआ ग्वाटेमाला से लाने पड़ेंगे सर ठीक है कि आप आओ और रहो यहाँ and America what you see is a very half picture 20% क्योंकि आपको क्या लगता है अमेरिका एक शिकागो इलिनॉय सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क they are very conservative people पर उसके लिए आपको मिडिल स्टेट्स में जाना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट में जाना पड़ेगा
आप जाओ नॉर्थ करोगे साउथ करोगे रिस्पॉन्सिव आपको पता चलेगा ठीक है दैट इज लाइक अ मिनी यूपी लिटिल बिट एडवांस यूपी very feudal in nature moral of the story very feudal in nature yeah wow that's the reality अभी like if anybody will any foreigner is coming to India कहाँ जाएगा अभी जयपुर जाएंगे जोधपुर जाएंगे उसको मैं बोलूँ लखीमपुर खेरी जाएंगे तब इतना then he will get the real idea of India but Europe का ऐसा सीन नहीं है but now see the rise of right they will get the settle they will get the score settled okay guys ये भाई को तो जानते हो ना एडवर्ड स्नोडाउन okay he used to work for National Security Agency of USA and he leaked very high profile documents of बे तुम लोग एडवर्ड स्नोडाउन को नहीं जानते सच में उसका मूवी मैंने वॉच लिस्ट में भी डाल के रखा था huge guy very controversial guy so he leaked the official documents of American security agencies that they are doing mass surveillance सबके ऊपर नजर रखते हैं ये करते हैं वो करते हैं तो दोस्त का दुश्मन कौन होता है रशिया बोले तू आजा घर पे मेरा पिया करा ठीक है सो ही हैज बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप ठीक है लिख लो इंडिया का फ्लैग किसने बनाया था वेरी गुड गाइस वेरी गुड गाइस वेरी गुड एससीओ का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल कहाँ पे अभी एससीओ की कौन सी मीटिंग हुई 16 नंबर है पढ़ाया था मैं आई पे अटेंशन टू ऑल दिस डिटेल्स जब मैं आपको पढ़ाता हूँ अगर आपने नहीं सुना वो आपका प्रॉब्लम है 20 सेकंड ठीक है और कहाँ पे हुई थी ताज अरे समरकंद उज़्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान ठीक है गुड गाइस गुड 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 મારવાની જરૂર નથી મને અને ગુસ્સે થવાની જરૂર નથી इंडिया कब प्रेसिडेंसी लेगा एससीओ की इंडिया नेक्स्ट ईयर हाँ विच ईयर नेक्स्ट ईयर 2023 सर नेक्स्ट ईयर तो G20 પણ છે ને બધું જ છે મજા જ છે ओके अमृत चलो लेट्स गो एड गाइस બધું જોડે देखो यार ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात आफ्टर द 26/11 अटैक्स दैट इज ताजवाला अटैक के बाद द होम मिनिस्ट्री थॉट दैट वी नीड अ डेडिकेटेड एजेंसी ये सीबीआई बीबीआई पुलिस एटीएस इन सब से काम होता नहीं है ठीक से एंड दे बॉच्ड अप द इन्वेस्टिगेशन सो दे वेर ऑफ द ओपिनियन दैट वी नीड अ
police force in a way which is entirely dedicated for this high profile attacks, crimes, all the activities associated with some special acts, crimes under those acts. ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है, वापस भी नहीं बोलूंगा, तो ध्यान से सिर्फ सुना करो अभी. सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थॉट्स के एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ये क्यों बनाया गया है? बिकॉज हमारी पुलिस फोर्स जो है नॉर्मल, उनको इन्वेस्टिगेशन कुछ आता है नहीं. ठीक है, तो बोले इनको बनाते हैं तो अच्छा काम होगा. तो NIA एक्ट लेके आए 2008 में, और 31 दिसंबर 2008 को ये एजेंसी बना दी गई है. ठीक है, क्या काम करते? इट इज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. लॉ एनफोर्समेंट मीन्स दे आर सीइंग टू इट दैट लॉज आर फॉलोड. सपोज इसके अंदर दे ऑल्सो हैव टू सी क्राइम्स रिलेटेड टू NDPS, नेशनल ड्रग्स एंड साइकोपेट्रिक सब्सटेंस. ठीक है, वो फॉलो हो रहा है. इफ एनीबडी वायलेट्स इट, पनिशमेंट, वो सब कौन देखता है? NIA. ठीक है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, ये SSI जहाँ पे लग गया मतलब बात खत्म. ठीक है, मोटा भाई इज इन द पिक्चर. ठीक है, ऑन द हाउस फ्लोर. ठीक है, तो कौन सा आएगा इसमें? फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स, मैंने बोला NDPS एक्ट. ठीक है, फेक इंडियन करेंसी एंड इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर, offenses of the statutory law to be implemented in international treaties. For an example, SARC के अंदर एक लॉ है, SARC जानते हो, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल, उसके अंदर भी एक लॉ है which deals with cross border filtration and drugs. वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं अच्छे से, वो भी कौन देखता है? NIA. ठीक है, it was constituted in NIA Act 2008. The agency is empowered to investigate terror-related crimes without special permission from the states. Special permission लेने की जरूरत ही नहीं है. Imagine the case of CBI. CBI अपने आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती स्टेट में, स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हमको परमिशन दो करने के लिए. NIA नो नीड, आ जाओ डायरेक्ट. ठीक है, कौन देता है परमिशन? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली. इतना लिखो, फिर इसके सेक्शंस पढ़ा दो. And especially if it's of serious nature, cross-border terrorism. खतरनाक नेक्सस चलता है इधर में. बड़वा ऊपर गया ना सब कॉलेज में I understood that Grandma can want to do after that, and that was not because I wanted to score better. The only thought was that if I got better scores in my activities, then I would have went to a much better school, so you can party much better. That was the whole point. Oh yeah. Definitely. That is about if you want to go to UP Austin, Madison, sense. It's very nice place. ऐसा नहीं, but like I would have had much vibrant college life if I would have scored well. That was the whole point of for me to score well. Otherwise, there was no point.
ओ मैन हार्वर्ड तो पूरा आपका हिस्ट्री खोल के दे आर क्रेजी माइंड उतना अपना वाला दिमाग नहीं हार्वर्ड वालों तो ये जज पर्सनालिटी बहुत पर्सनालिटी ऐसा भी नहीं है कि तूने सिर्फ समाज सेवा किया है तेरे को लेके जज हुआ दे आई थिंक दे सिलेक्ट पीपल ऑन कैरेक्टर सेक्शन इनका जोरदार है एकेडमिक्स तो है ही वन ऑफ द फैक्टर्स वो मैं कभी कैसे कह सकता हूँ ऐसे those information can not be divulged ठीक है बट पढ़ना चाहिए और स्पेशली पीपल शुड गो फॉर अंडरग्रेड मेरे तो सारे कजिन्स दे वेंट फॉर मास्टर स्टडीज आई एम द ओनली वन इन माय फैमिली गोइंग फॉर अंडरग्रेड सो ओके चलो ध्यान से सुनो अभी एनआईए को कौन सा कैसे पता चलेगा कि ये कांड किया है तो मेरे को इसको पकड़ने का पड़ेगा ठीक है सो अंडर दिस एक्ट देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड शेड्यूल ऑफेंसेस क्या नाम है शेड्यूल ऑफेंसेस तो उनको ऑलरेडी एनआईए हैव बीन टोल्ड दैट दिस आर द लिस्ट ऑफ एक्ट्स इफ एनी क्राइम इज डन व्हिच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट तो उठा लो उनको ठीक है मेजर एक्ट्स है एटॉमिक मटेरियल्स एक्ट एटॉमिक एनर्जी एक्ट एनडीपीएस है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पढ़ाया था क्लास में पता है ना अमेंडमेंट्स के साथ वो सारी चीजें हैं ठीक है बड़ी बड़ी विच आर ऑफ वेरी मेजर क्रूशियल इश्यूज विथ नेशनल सिक्योरिटी ठीक है एंटी हाईजैकिंग है ये सारा कौन देखता है एनआईए सार्क का टेररिज्म वाला मैंने बोला कौन देखेगा अगेन एनआईए ठीक है चलो सपोज गुजरात गवर्नमेंट वांट्स दैट एनआईए को ये क्राइम देखना चाहिए सपोज अभी रिसेंटली आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में किसी का मर्डर हो गया था तो उन्होंने बोला एनआईए वाले आप आ जाओ थोड़ा जाके देख लो ठीक है तो कैसे करेंगे तो सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट उसमें क्या बोला है इफ एनी शेड्यूल ऑफेंस इज कमिटेड इन एनी स्टेट देन स्टेट गवर्नमेंट कैन सेंड अ रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप किसको भेजो ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनआईए को तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स ऑन द पिटिशन सो अंडर व्हिच एक्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन आस्क हेल्प ऑफ एनआईए सेक्शन 6 ऑफ एनआईए एक्ट लिखो ये एक्ट भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था बिकॉज 2019 में अमेंडमेंट्स हुए थे इसके रिलेटेड तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप कर सकता है ठीक है बिकॉज दिस एजेंसी वर्क्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है सपोज इफ यू आर बुक्ड अंडर एनआईए आपको पता होगा सपोज पीएफआई के कितने सारे लोग जो पकड़े गए ऑफिस बेरर्स दे आर बुक्ड अंडर एनआईए तो उनको कोर्ट तो ले जाना पड़ेगा सो अंडर दिस एक्ट देयर आर प्रोविजन फॉर स्पेशल कोर्ट्स क्या है प्रोविजन एनआईए क्या कर सकता है स्पेशल कोर्ट बना सकता है सपोज एनआईए एज इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एन एग्जांपल अहमदाबाद में कोई पकड़ा गया ना उसको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा तो एनी सेशन कोर्ट सेशन पता है ना ये भद्रकाली और गीका का एनी सेशन कोर्ट कैन बी डेजिग्नेटेड एज एनआईए स्पेशल कोर्ट किसकी परमिशन से चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात पता चला पकड़ लिया किसी को तो उसके ऊपर मुकदमा चलाना पड़ेगा कैसे चलाएंगे कोर्ट चाहिए कोर्ट कहां से आएगा सेशन कोर्ट को आप क्या कर सकते हो स्पेशल एनआईए कोर्ट बना सकते हो विद द परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट ठीक है लिखो बट इससे सेशन कोर्ट के साथ हो सकता है ना इससे सेशन कोर्ट के साथ हो सकता है किसी भी कोर्ट के साथ हो सकता है एनी कोर्ट यस 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 सर आवा कोई कांगारू कोर्ट बनी हो चांसेस ना ना कांगारू कोर्ट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट वो तो अपने हरियाणा यूपी जाना पड़ेगा
पंचायत जो होता है ना वो वाला सिस्टम, खाप पंचायत दैट इज गोज आउट। નાણે સર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ નક્કી કર્યું કે આને કઈ કઈ ને કઈ અંદર નાખવો છે તો अरे ये तो बता वो मैं एमएन नाम दे ना तो क्या नाम होगा मैं डिस्कस करना। गुजरात की जेल इज लाइक आई थिंक 150% or 140% occupied more existing capacity। करो यार सेंट्रल जेल हॉल सब जेल हॉल करो मरीज आइडिया मत दिया आपने સર હું आशा હમણાં में तुम कुछ मरे वाले कैसे तो तने સર कैसे જેલની વિઝિટમાં ગયો હતો હું હમણાં તો ત્યાં એવું હતું કે જે મેઇન જેલ હતી ને ત્યાં તો બધાને કામ કરાવતા હતા એવું હતું પણ જે ઓન ટ્રાયલ પ્રિઝનર હતા ને ત્યાં એકદમ ભરેલું હતું એક જેલમાં 50 જેવા લોકો એક રૂમમાં એટલે ત્યાં અમે ક્રિમિનલ જસ્ટિસ So, sir, we want to designate High Court as a United Special Court. What will be happening? Whose permission will be taken? હવે ઇન્ડિયા શું કહે છે હાઈકોર્ટ ને બનાવવો હોય તો પણ એનાથી જ લઈ આવું चलो सुनो, ये जो मैंने सेशन कोर्ट की बात की विच आर मेड अ स्पेशल कोर्ट, वो कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन 11 एंड 12, बस इतना लिख दो। ये जो मैंने बोला दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल कोर्ट्स अंडर सेक्शन 11 एंड 22। सर एक बार रिपीट करो का मैंने बोला 11 ને 12 કે 11 कौन बोले हुआ अरे 11 12 में भूखा કેમ ના ખબર પડ્યું? કેટલી વાર બોલ્યો? બે વાર? અલગ અલગ એડજસ્ટ मैंने दोनों बोला, एंड बोला था। एंड इज अ कंजक्शन विच इज यूज टू जॉइन टू सेंटेंस। सेक्शन 11 एंड 12 के अंडर ये सारी चीजें होती है। बोलो यार, प्रॉब्लम है ने कहूं છું ને। कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? Astana. देखो पहले अस्ताना था, फिर नूर सुल्तान किया, अभी नूर सुल्तान को हटा के वापस क्या कर दिया है? अस्ताना कर दिया है। બાઉ નથી બનાવતા મેં યાર આટલું ચોખ્ખું કીધું કે નહીં નહીં કે પહેલે આ હતું પછી આ થયું અને પછી પાછું શું કરી દીધું? अस्ताना। सो प्लीज रिमेम्बर, હવે પૂછે तो कजाकिस्तान को याद रखो, इट्स अस्ताना ओनली, ठीक है? वापस उसका नामकरण बदल दिया है। पीपल आर गेटिंग इम्प्रेस्ड। સર નવું કોણ બનાવે સેન્ટ્રલ એશિયન માંથી કોઈ એક નવું બી બનાવે अरे भाई इंडोनेशिया बनाई રહ્યું છે, दे आर मूविंग इट फ्रॉम जकार्ता टू, भाई હું ભૂલી ગયો, दे आर मूविंग फ्रॉम इट फ्रॉम जकार्ता टू ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। હું નામ ભૂલી ગયો છું। इंडोनेशिया आर मूविंग इट्स कैपिटल, ओके? नुसंतारा, यस, थैंक यू ऋषि। नुसंतारा, ओके? वो बोर्नियो का जो आइलैंड है ना, अगर आपको नहीं पता होगा तो उस पे 3 कंट्री है, ठीक है? एक है मलेशिया, एक है इंडोनेशिया और दूसरा है ब्रूनी। वो तीनों दिन एक ही जगह पे पार्टी करते। सो आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 3। ब्रूनी, ठीक है? Yes, because of the climate change, Jakarta was sinking and it's very unstable place. So they decided to move it to Nusantara. ठीक है? શું પહેલા हाँ? માર્ચ Exercise Kakadu. Exercise Kakadu. KAKADU. किसके साथ हुआ है हमारा? एनी आइडिया? નામ જરા કાકા Kakadu. KAKADU. मेरे को भी ऐसा ही लगा था when I marked that MCQ and actually I was incorrect. ઓપ્શન શું છે हाँ? ઓપ્શન શું છે लिखो ऑस्ट्रेलिया, કાંગારૂ ठीक है? इट्स अ बायएनियल एक्सरसाइज दैट वी डू विथ ऑस्ट्रेलिया नेवी के साथ, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी, ठीक है?
સ્પેલિંગ નહીં આવડે ને તો એક્ઝામમાં એ નહીં આવડે પછી સ્પેલિંગ. હું એ જ કહું છું. ठीक है, it was held in Australia. ठीक है, एंड इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. मतलब ऑस्ट्रेलिया कितने बहुत सारे कंट्रीज के साथ करती है, अराउंड 14 to 15. कंट्रीज के साथ करती है. थीम लिखो, पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप. पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप. हमारे यहां से कौन सा शिप गया है, लिखो INS सातपुरा. सातपुरा क्या है? इट्स अ हिल रेंज. या તું તારી રીતે સાચું છે, બરાબર. સાતપુરા એન્ડ અ મરીન એરક્રાફ્ટ કોલ P8I. એ સર્વેલન્સ માટે છે. યસ, સર્વેલન્સ માટે P8I. આ બંને પાર્ટિસિપેટ કર્યું ફ્રોમ ઇન્ડિયન સાઇડ. ઓકે, So P8 P8I. P8I. हाँ. और P8I. 8 as in numerical 8. I for it. નેક્સ્ટ ટાઈમ થી હું ચા લઈને આવીશ મારી જોડે, એટલે મને આ માથું દુખે ને તારે હું એક બે ભૂખડા મારી શકું. બાયલેટરલ એક્સરસાઇઝ વિથ ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ OSIDEX. બાયએન્યુઅલ વાળું પતી ગયું, આ નવું કહું છું. બાયલેટરલ એક્સરસાઇઝ વિથ ઓસ્ટ્રેલિયા ઇઝ OSIDEX. ખતમ કરશો તો ખતમ નહીં જ કરું, યાદ રાખજો. વેલકમ ટુ ઇન્ડિયા. અમારો ઓવર ટાઈમ જ હોય. પેલું પિક્ચર નથી જોયું દેશી કોઈ સર્વી, ઇન્ડિયન્સ આર ઓલવેઝ લેટ. ખબર છે પેલું એક્ઝામ લખવા જાય તારે લેટ આવે. યાર યુ શુડ બી હેપી. હું ઓવર ટાઈમ કરું છું. ના ના ના, જો યાર તમે લોકો એક સાચો આન્સર આપી દેશો તો જવા દઈશ, બરાબર. વિચારીને બોલશો. હા, કોઈ આપવો છે ડિસાઈડ કરી લો પહેલે. જો સાચો આન્સર આપતો જવા દઈશ, બરાબર. હા યાર, એકચ્યુઅલી કન્ફ્યુઝ છું કયા ક્વેશ્ચન પૂછું. હું છે ને બધા ન્યૂઝ સેવ કરી રાખું છું, સો મને ખબર રહે કે મારે આ ભણાવવાનું છે એમ. ચલો, ચીતા જે આપણે લઈને આયા એ કયા છે? આફ્રિકન ચીતા. એનું IUCN સ્ટેટસ કહી દો. ચલો, તમે બધા અહીંયાથી કૂદી જાઓ વન બાય વન. ધોઝ ક્રિટિકલી, મને ખબર. જો દોસ્ત, હવે જો આ ભૂલ થઈ, મારે ભણાવવું પડશે કે નહીં ભણાવવું? જો હવે સમજી લો. એશિયાટિક ચીતા આર ક્રિટિકલી એન્ડેન્જર્ડ, ફાઉન્ડ ઓનલી ઇન ઈરાન. ક્રિટિકલી એન્ડેન્જર્ડ છે ઈરાનમાં, ઓલ ઓવર. બટ ઇન્ડિયામાં પૂછે તો એક્સટિંક્ટ, બરાબર. 1947 માં ઉડી ગયા, 47, બરાબર. હા, અલા મેં પેલા રાજાનો ફોટો જોયો છે, એના પેલા 3 ચીતા જોડે. ચલો, અને પછી this African cheetah that we got from Namibia, those are vulnerable. Okay, સમજી ગયા? ચલો ભાગો ગાઈસ, થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ મળીએ આપણે.
Yeah,